This is second lecture for class 11. The name of the chapter is Basic Concept of Chemistry. So already concept of matter and state of matter was given in last video. So today I am going to start state change of matter. State change of matter. Already we know that we have mainly three states of matter. Another state is also there, plasma state, but for in your syllabus, plasma state is not given. So suppose we have a solid body. We want to convert this solid body to liquid state. So what is the necessary condition? It should be heated, means temperature should be high and pressure should be low. Here, when we convert solid to liquid, the rule of pressure is not so important because already I told you that solid and liquid are incompressible. But rule of temperature is important here because in solid intermolecular force is maximum. We have to overcome that intermolecular force of attraction by external energy. So this process is called fusion. And again, when liquid is heated, it's converted to gas, means at high temperature, low pressure. Pressure should be low. Then this process is known as evaporation. Evaporation. But some solid directly convert to gas state without having the liquid state, and this process is known as sublimation. Sublimation. And when gas is cooled at high pressure, it's again become liquid. So this process is known as condensation. So what is the condition of condensation? At low temperature and high pressure. High pressure. And you have to remember, the gas is highly compressible. Gas is highly compressible. And when liquid is cooled at low pressure, so it's converted to solid. So this process is known as solidification, or you can say formation. In different book, different name is given, but you have to know the concept. And here you have to remember two important terms. One is enthalpy. Enthalpy change. Enthalpy change denoted by delta H. Enthalpy change. Basically, enthalpy means, simple meaning is final energy minus initial energy. Okay, simply final energy minus initial energy. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब होता है. मीन्स लिक्विड का एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा है, तो लिक्विड का एनर्जी से हम लोग सॉलिड का एनर्जी को अगर माइनस करेंगे तो वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. इसका मतलब है सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव. वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. सो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा ना, द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद नहीं होगा. वी हैव टू गिव द एनर्जी. स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस. सो एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड इफ एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव मतलब जैसे हम लोग गैस को कन्वर्ट किया लिक्विड में और लिक्विड को कन्वर्ट किया सॉलिड में. इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा. एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा. रिमेंबर, गैस का एनर्जी ज़्यादा है. गैस को जब हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा. सो अगर फाइनल से अगर इनिशियल को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू मिलेगा. सो एंथैल्पी चेंज क्या है, नेगेटिव. लेकिन ये केस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. स्पॉन्टेनियस आगे आप थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल्स पढ़ोगे, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे. एंड एंथैल्पी चेंज जब नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होगा. और एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब हीट गेन होगा. एंड एंडोथर्मिक मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस. एक्सोथर्मिक मतलब स्पॉन्टेनियस. एंड we can also explain entropy here. Entropy means randomness. जब कोई भी सिस्टम, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है. अब एंट्रोपी एग्जैक्ट क्या है वो आप थर्मोडायनेमिक्स में जाकर समझ में आ जाएगा. लेकिन एंट्रोपी का एग्जैक्ट मीनिंग है रैंडमनेस.
जब कोई भी सिस्टम एनर्जी गेन करता है तो मॉलिक्यूल रैंडम हो जाता है, रैंडम मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है। तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है और लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब है एनर्जी गेन हुआ है, तो एंट्रोपी क्या हुआ है, इंक्रीज। फिर गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी मॉलिक्यूल का कम हो गया, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गए, स्टेबल रैंडमनेस कम हो गए, तो एंट्रोपी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग न्यू टर्म्स क्या क्या मिला है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, एंट्रोपी इंक्रीज होना, एंट्रोपी डिक्रीज होना, स्टेबल होना, अनस्टेबल होना, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, सब में कनेक्शन है, सब में कनेक्शन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, याद करने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज टाइम लगने से भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरलिंक करो, कोरिलेशन बनाओ, तब जाके स्टेप बाय स्टेप और समझ में आएगा। फर्दर जो कनेक्टेड चैप्टर्स होगा उसमें और इजी लगने लगेगा। सो आफ्टर change of matter, we have to discuss about classification of matter. Classification of matter, very very important. Mainly we have two classification of matter. Mainly one is mixture, other is pure substance. Okay, so suppose now we have mixed water with sugar. So in sugar water we have mainly two components, one is sugar, other is water. But now after mixing sugar in water, the properties of sugar is not changed and the ratio between sugar and water is not fixed. So it means sugar and जो water है उसका बीच में कोई chemical reaction नहीं हुआ है, chemical reaction नहीं हुआ है। मिक्सर में जो भी component होगा, component का आपस में कोई reactions नहीं होता है, और reactions नहीं होगा तो new substance नहीं बनेगा, properties change नहीं होगा। You have to understand this. For example, sugar water, salt water, ये सब example of what? Mixture. Milk is also example of mixture. Milk में बहुत सारा component है, मिल्क का अंदर बहुत सारा कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट का प्रॉपर्टी अलग अलग है, डिफरेंट है। ओके, एंड प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अगर मैं मान लो आयरन का साथ वाटर को रख दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कुछ दिन बाद क्या बन जाएगा, रस्ट बन जाएगा, रस्ट। सो रस्ट का प्रॉपर्टी आयरन से टोटली डिफरेंट है। आप देखो जैसे शुगर वाटर था, वाटर का प्रॉपर्टी मिलाने से पहले मिलाने के बाद सेम है, शुगर का भी प्रॉपर्टी टेस्ट जो है मिलाने से पहले मिलाने के बाद भी सेम है। बट जब आयरन एंड वाटर से रस्ट बन गया, रस्ट का प्रॉपर्टी आयरन से टोटली डिफरेंट है। सो रस्ट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड बाय आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो कंपोनेंट का टोटली प्रॉपर्टीज क्या हो गया, चेंज हो गया, कंपोनेंट का बीच में एक फिक्स रेशियो में रिएक्शन हुआ है। तो प्योर सब्सटेंस हमेशा बनता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है। यहाँ पे टोटली न्यू कंपाउंड बनता है। जैसे हम लोग खाना वगैरह जब खाते हैं ना, वो मिक्सचर है, लेकिन खाना को आप 4-5 दिन रख दो तो क्या हो जाएगा, खराब जब हो जाएगा, टेस्ट देखना कितना खराब बन जाता है, मतलब प्रॉपर्टीज टोटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ, गेटिंग द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना को हम लोग 4-5 दिन अगर रख देते तो मिक्सचर से कुछ और बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, इसलिए टेस्ट बहुत ही खराब होता है, टोटली डिफरेंट होता है। ओके, सो प्योर सब्सटेंस का बहुत सारा एग्जांपल है। मेनली हम लोग तो आगे जाकर जितना भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होगा, जो भी न्यू प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर मेनली सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हम लोग 12th में भी एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ पे थोड़ा काम आएगा आपको। मेनली याद रखना, रियल लाइफ में बहुत सारा सॉल्यूशन यूज होता है, एंड सॉल्यूशन क्या होता है आपका, मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है। So we have two type of mixture, one is homogeneous, other is heterogeneous. In homogeneous mixture, components are uniformly distributed. For example, sugar water. Sugar water is the example of what? Homogeneous mixture. Means sugar जब पानी में मिक्स कर दे, हर एक जगह में जो मीठा का अमाउंट होगा वो हर एक जगह में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि it is the example of a homogeneous mixture. And homogeneous mixture is also known as true solution. ये पॉइंट आपको एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। And next one is heterogeneous mixture. Heterogeneous means component are not uniformly distributed. जैसे मिल्क हो गया, मिल्क जो मिल्क मैन आता है ना मिल्क देने के लिए, तो उसको अच्छे से मिक्स करके देते हैं, क्योंकि मिल्क इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कभी कभी क्या होता है, मिल्क को रख देने से नीचे कंपोनेंट का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मडी वाटर है, हाँ, सेंट वाटर है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट,
हेट्रोजेनियस मिक्सचर। स्मोक हो गया, स्मोक कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे डेंसिटी क्या है, कम होगा। ओके, सो हेट्रोजेनियस का हमको लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल मिलेगा। आगे जाके आपको हेट्रोजेनियस मिक्सचर के रिलेटेड सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल्स पढ़ोगे। Okay, so we have two type of heterogeneous mixture. One is called suspension, other is colloidal. Suspension means the particle are big, means particle can be seen by naked eye. Okay, for example, muddy water. We can see that mud is mixed with water. Okay, and next one is colloidal. Colloidal means particle are very small. We cannot see the particle with the help of naked eye. For example, smoke, milk में भी पार्टिकल दिखाई नहीं देते। ओके, सो कॉलोइडल का भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, और जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है कुछ उसको आप सरफेस केमिस्ट्री में क्लास 12 में डिटेल्स पढ़ोगे। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस का दो भाग है, वन इज एलिमेंट, अदर इज कंपाउंड। एक बात याद रखना, प्योर सब्सटेंस हमेशा केमिकल रिएक्शन से बनता है, तो प्योर सब्सटेंस का एक फिक्स फार्मूला होगा, हमेशा फार्मूला होगा, जैसे आपका S8 है। ओके, सो एलिमेंट का मतलब है मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे 8 सल्फर एटम से बना हुआ है, जैसे ओजोन हो गया O3, ओनली मेड बाय ऑक्सीजन एटम। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आवर एलिमेंट। सिंगल भी हो सकता है ना, जैसे कॉपर हो गया, दिस आल्सो एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, मेड बाय ओनली हाइड्रोजन एटम। दिस आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एलिमेंट। सो एलिमेंट आपका हमेशा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, बट याद रखना एटम का मतलब क्या है, सिंगल। पर याद रखना एलिमेंट आर मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम एंड कंपाउंड आर मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है, सो दे आर मेड बाय व्हाट, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। हाँ, एंड एक बात याद रखना, कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि अलग अलग एटम होगा तो मॉलिक्यूल होगा, एटम नहीं है, सिंगल नहीं होगा। सो कंपाउंड आर ऑलवेज व्हाट, मॉलिक्यूल, बट एलिमेंट मे बी मॉलिक्यूल, मे नॉट बी मॉलिक्यूल। सिंगल एटम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एलिमेंट। ओके, जैसे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स होगा सिंगल एटम है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लेकिन कुछ मैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताया, उसको एनालिसिस करना। नाउ जस्ट आप लोग क्लास 9-10 खत्म करके आया, सो 11 में आने के बाद आपको बहुत फास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, जल्दीबाजी नहीं, हाँ, समझ के आगे बढ़ो, देखना धीरे धीरे आपको बेस बनते जाएगा। Next is we have to discuss about properties of matter. Means first is what is matter, you already got it. State of matter, state change, classification of matter. Last is properties of matter. Mainly we have two type of properties. One is physical properties, other is what, chemical properties. Physical means temporary change, temporary process. For example, melting of ice. अगर आइस को हम लोग मेल्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। फिर हम लोग वाटर को अगर ठंडा करेंगे ना, फिर वापस आइस बन जाएगा। सो इट्स अ टेम्पररी प्रोसेस, रिवर्सिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। जो भी प्रॉपर्टी चेंज होता है रीबैक, हम लोग रीबैक में ला सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो केमिकल चेंज हुआ केमिकल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज परमानेंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर रस्ट को हम लोग आयरन में, सॉरी आयरन को अगर रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रस्ट से वापस आयरन नहीं मिल सकता, जैसे कर्ड ऑफ मिल्क। हाँ, कोई ऐसा सोचता है कि कर्ड मिल्क से बना हुआ है तो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगा, यानी मिल्क खाओ या आप कर्ड खाओ, दोनों का कंपोजिशन सेम होगा ना, बहुत डिफरेंट होता है। याद रखना, मिल्क में विटामिन सी मिलता है, सॉरी कर्ड में विटामिन सी मिलता है, बट मिल्क में ना, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, विटामिन सी को छोड़ के बाकी जितना भी विटामिन है वो आपको मिल्क में मिलता है। ओके, सो मिल्क का प्रॉपर्टीज और मिल्क में जो कंपोनेंट है कर्ड से टोटली डिफरेंट है। एक बार मिल्क अगर कर्ड बन जाएगा ना, सो कर्ड से वापस अब मिल्क नहीं मिल सकता है। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज एंड द प्रॉपर्टी चेंज इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को अगर बर्न करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी से वापस कैंडल को नहीं मिल सकता है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिलेगा, सो बट यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट। सो इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट which is very very important, and you got a basic concept regarding mole in class 9, but here you will get a vast content. So
you have to remember the atomic number of element up to zinc. Try to remember, then it will very easy to understand regarding mole concept. And you will get two type of mainly mass. One is real atomic mass, and other is relative atomic mass. So we have to find a relation between real atomic mass and relative atomic mass. Okay, fine.